अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान, योर मैथ्स टीचर। आज हम 9th क्लास के मैथ के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले चैप्टर का नाम जो है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के मुतालिक है हमारा चैप्टर। इससे पहले हम रियल नंबर्स को डिस्कस करें, रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल और इररेशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं। रैशनल नंबर्स वो तमाम नंबर्स या सेट ऑफ दोज नंबर्स which can be written in the form of p over q। ऐसे तमाम नंबर्स जिनको p over q की फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है, उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर लिखता हूं यहां पे 10। 10 can be written as 10 over 1। It means we can say 10 is a rational number। इसी तरीके से 2 over 5, this one is the fraction or it is already in the form of p over q, so we can say 2 over 5 is a rational number। There is another example, I am writing 2.5। we can write it as in this form of fraction, and this one is written in the form of p over q, so 2.5 is a rational number। Irrational number those numbers which cannot be written in the form of p over q, जिनको p over q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, that numbers are called irrational numbers। that numbers are called irrational numbers, जिनको p over q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? irrational numbers कहलाते हैं। रैशनल और इररेशनल, रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है q से, एंड irrational numbers are denoted by q dash। rational numbers are denoted by q and irrational numbers are denoted by q dash। तो एक चीज जो यहां पर याद रखने वाली है, the combination of rational numbers and irrational numbers, the combination of both rational numbers and irrational numbers is called real numbers। combination of rational and irrational numbers are called real numbers। we can write it as real numbers are q union q dash, यानी rational numbers और irrational numbers का जो यूनियन है उसे हम क्या कहते हैं? real numbers। I think you can understand this topic। इसके बाद आगे हम चलते हैं next topic which is we are going to discuss is decimal representation of rational numbers। decimal representation of rational numbers। जी, there are two main types of rational numbers, decimal representation of rational numbers। first one is terminating decimal numbers, and second one is non terminating decimal numbers। non terminating decimal numbers। जी,
a decimal number, a decimal number with a finite number of digits after the decimal point. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रेशनल नंबर है जिसे मैं लिखता हूं 1/4. सपोज करते हैं 1/4 इज आवर रेशनल नंबर. अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे 1.0, 4 2s are 8, 2 0, 4 5s are 20. There are only two numbers after decimal point, so we can write it as 0.25. There are fewer numbers after the decimal point, so we can say 1/4 is a terminating decimal number. Same like we can write 4/5. We are going to solve it. 4 5.0, 5 8s are 40, and 0.5 we can say 4/5 is our terminating decimal number. Now we are going to discuss non-terminating decimal numbers. Here is the example 2/3. When we consider 2/3, let's solve 2 3.0. 3 6s are 18, 2 again 0, 3 6s are 18, 2 again 0, and so on. Answer will be 0.66666 and so on. There is infinite number after the decimal point. जब infinite number आ गए decimal point के बाद, तो इसका मतलब यह है कि ये non terminating decimal number है. 2/3 is not a terminating, it is non-terminating decimal number. So there are more two types of non-terminating decimal numbers. First one is recurring decimal numbers. Recurring decimal numbers, and second one is non-recurring decimal numbers. अगर कभी हम बास डेसिमल नंबर्स इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं जिस तरह ये हमने लिखा 0.6666 के पॉइंट के बाद जो आने वाले डिजिट्स हैं वो एक खास अरेंजमेंट के अंदर रिपीट होकर आ रहे हैं. जैसे 66666 is repeating many times, like 0.232323. यहाँ पे अब 23 जो है वो रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है. तो इस तरह की जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. These numbers are called recurring decimal numbers. और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का ताल्लुक जो है वो आपके रेशनल नंबर्स से होता है. रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका ताल्लुक रेशनल नंबर से होता है. जबकि नॉन रिकरिंग अब क्या होगा, जिसमें पॉइंट के बाद आने वाले जो डिजिट्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हो, कोई खास तरतीब ना हो उनकी, वो मुसलसल बदल रहे हो. तो ऐसे नंबर्स जो हैं उनको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. उनको क्या कहा जाता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का जो लिंक है, जो ताल्लुक है, वो किनके साथ है, इर्रेशनल नंबर्स के साथ है. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड. इसमें एग्जांपल जो नॉन रिकरिंग की मोस्टली जो यूज होती हैं वो क्या है. फर्स्ट वन इज पाई. पाई इज, इसकी वैल्यू क्या होती है हम में से अक्सर जानते हैं, बल्कि 3.141592 एंड सो ऑन. तो पाई इज अ नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर एंड इट इज अ इर्रेशनल नंबर. इसी तरीके से ई जो है इसे हम कहते हैं यूलर्स नंबर. और इसकी जो वैल्यू होती है 2.718281 एंड सो. तो
ये भी ई की वैल्यू की जो है ये कंटिन्यूसली पॉइंट के बाद चेंज हो रही है, नंबर चेंज हो रहा है, इस वजह से इसे भी हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर का ताल्लुक जो है वो हमेशा इर्रेशनल नंबर से होता है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड।